Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। We are going to have these lectures again, the part of 15. The claim that the Ismail was the sacrifice. फिर से इस कार्यक्रम को आगे चलाते हुए जो उसका भाग 51वां है कि Welcome to Gentle Answer. हम आपको नम्र उत्तर में आपका स्वागत करते हैं। प्रोग्राम भाई ये बात सच है। ये जो कार्यक्रम है ये बात सच है के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। As we discuss in the 14th part, और इसका 14वां भाग हम प्रस्तुत कर रहे हैं। the remaining part we are going to discuss in this 15th part. और जो बाकी का जो अंश है वो जो 15वां भाग होगा उसमें हम उसका चर्चा करेंगे। I would like to just first stanza repeat that if one search the whole Quran, he will find nothing mentioned about the birth of Ishmael. मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप पूरे कुरान में खोजे तो हम देखते हैं कि इस्माइल के संबंध में और उसके जन्म के संबंध में कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। In fact, very little is said about Ishmael. और हकीकत में हम देखते हैं तो बहुत कम इस्माइल के बारे में कहा गया है। And absolutely nothing is said about the identity of his mother or his sons. और उसकी माँ और उसके बेटे की परिचय और जानकारी के विषय में कुछ भी नहीं बताया गया। It is from the Bible that we learn that Ishmael's mother was named Hagar. वो तो हम बाइबल से सीखते हैं कि जो इस्माइल की माँ थी उसका नाम हागार था। And that is Ishmael had 12 sons. और इस्माइल के 12 बेटे थे। We'll see in the Bible. वो हम बाइबल में देखते हैं। Genesis 25, उत्पत्ति का 25वां अध्याय 12 to 17. 12 से 17 आयत में देखते Let हैं। us read. आइए हम उसको पढ़े। Genesis उत्पत्ति 25, उसका 25वां अध्याय yes, and 12 to 17. और 12 से 17 पर। Genesis 25. And we will see from आइए हम 12 to उससे 17. देखें। उसमें 12 पद से 17 पद तक देखेंगे। Said, कहा गया है and और Mishma and Duma, 25. Genesis 25. मिश्मा और दुमा Yes, के बारे में yes. And Masa. और मासा Hadad and Tema and Jethur and the Naphish and Kedma. सो यहाँ हम देखते हैं कि जो अब्राहम के पुत्र इस्माइल जो सारा की मिस्री दासी हाजिरा से उत्पन्न हुआ था उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा, मसा, हदर, तेमा, यतूर, नापीस और केदमा। Yes, and let me remember that. And these are the names of the sons of Ishmael by their names in the order of their birth, and Nebiah, the firstborn of Ishmael, and Kedar, the Adbeel, and the Mibsam, and Mishma, and the Duma, and the Masa, and the Hadad, and the Tema, and the Tur, and the Nabis, and the Kedma. सो हम यहाँ देखते हैं कि इस्माइल के पुत्र यही हुए और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांव और छावनियों के नाम भी पड़े और यही 12 अपने अपने कुल के प्रधान थे और उनके जो बेटों के नाम पहले हमने पढ़ लिया है। उस प्रकार जो उसके 12 बेटे थे वो अर्थात इस्माइल का जो जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा,
मसा, हदर, तेमा, यतूर, नापीस और केदमा। These are the sons of Ismail, and these are their names by their villages and their camps, and 12 princes according to their tribes. And 17 said that these are the years of the life of this man. Yes, Ismail 137 years, and this is last, and died and was gathered to his people. सो यहाँ कहते हैं 17 पद में 17 आयत में कि इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। Getting back to the good news, अभी हम जो शुभ संदेश के ओर वापस आते हैं, mentioned in the other verse of the Quran, जो कुरान के ऊपर पढ़ी हुई आयत में हम पाते हैं, we read this about Isaac and his mother Sarah. और तो हम उस क्या है कि इसहाक और उसकी माँ जो सारा है उसके विषय में पाते हैं। Let's see the Quran, Suratus Zariyat. सो हम देखते हैं कि कुरान में सूरतुस ज़रियात में 51, उसका 51, 24, 25, 24 और 25 आयत 28 to 30. और 28 से 30 आयतों में देखते हैं। As the story reached the of the honored and the guest of the Abraham, behold, they entered his presence and said, Peace. He said, Peace. And they said, Fear not. And they gave him glad tidings of a son endowed with the knowledge. But his wife came forward, laughing aloud, and she smote her and forehead and said, A barren old woman, they said, Even so as thy Lord is spoken, and he is full of wisdom and knowledge. सो यहाँ 24 और 25 आयत में हम पढ़ते हैं और 28 से 30 आयतों में, क्या तुमको इब्राहिम के सम्मानित अतिथियों की बात पहुंची? जब वह उसके पास आए फिर उनको सलाम किया, उसने कहा तुम लोगों को भी सलाम है, कुछ अनजाने लोग हैं। फिर 28 आयत में फिर वह दिल में उनसे डरा, उन्होंने कहा कि डरो मत, और उनको ज्ञान वाले लड़के की शुभ सूचना दी। फिर उसकी पत्नी बोलती हुई आई, फिर माथे पर हाथ मारा और कहने लगी कि बूढ़ी बांझ। उन्होंने कहा कि ऐसा ही फरमाया है तेरे पालनहार ने, निसंदेह यह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। So you can understand here. तो आप यहाँ समझ सकते हैं The good news is the Isaac. सो जो शुभ संदेश था वो तो इसहाक था, Because this was the angels who came and they just, Lord appeared. And he said through angels that I am going to give you a good news, a son as a good news. सो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपने दूतों के साथ अब्राहम के पास आते हैं, उनको दिखा देते हैं और कहते हैं कि यही शुभ संदेश जो है मैं तुम्हें दूंगा, जो तेरा बेटा इसहाक जन्म लेगा। We have read in the Surah Safat in the past part 14 that was mentioned about the good news. जो हम पिछले बार में सूरह सफात और 14 पद में हम 14 बाब में हमने पढ़ा कि ये शुभ संदेश के विषय में। This good news is mentioned, not the name of the son mentioned, but the good news is mentioned. यहाँ हम देखते हैं कि जो शुभ संदेश है उसमें क्या है कि जो बेटा का नाम नहीं बताया गया, लेकिन शुभ संदेश बताया गया है। How amazed! कितना अद्भुत है। So the find in the Bible the good news. Of course, Quran is speaking about good news, but not mentioning the name of the son.
हाँ, हम बाइबल में भी ये शुभ संदेश को देखते हैं और कुरान में भी ये शुभ संदेश बताया गया है, लेकिन वहाँ उसके बेटे का नाम नहीं बताया गया। But in the Bible is everything clear. लेकिन बाइबल में सब कुछ स्पष्ट रीति से बताया गया है। See, the more than Quran, we find about Ishmael in the Bible. कुरान से अधिक तो हम बाइबल में पाते हैं इस्माइल के विषय में, But very little about Ishmael in the Quran. लेकिन बहुत कुछ कम जानकारी हम इस्माइल के बारे में कुरान में पाते हैं। As in the beginning I said that the name of the mother is not mentioned. जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो बेटे की माँ का नाम कुरान में नहीं बताया गया। The Quran is no mention about mother. कुरान में माँ का नाम नहीं बताया And गया। also the children of Ishmael not mentioned in the Quran. और कुरान में इस्माइल के बेटों के भी नाम नहीं बताए गए। See, whereas they are claiming that Muhammad is the prophet of Islam, is the descendant of the Ishmael, and Ishmael is coming from the Abraham, and he is the brother of Isaac. So he has a right all this that to receive as a good news. सो ये बात जो मुसलमान हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि जो इस्माइल है और जो मोहम्मद है वो इस्माइल के वंश से आता है, और जो इस्माइल था वो अब्राहम का बेटा और इसहाक का भाई था। They say that this is the relation. और ये बताता है कि ये जो संबंध है, Whereas Bible said no. और लेकिन बाइबल तो ये संबंध नहीं बताती है, Because there's no stream, there's no relation at all. Because when the Ishmael committed adultery means the went to the behind the idols. तो जब हम यहाँ देखते हैं कि इस्माइल का जो विषय में जो बताया गया है वहाँ बाइबल में उसका कोई संबंध नहीं बताया है, क्योंकि हम देखते हैं कि इस्माइल जो था वो क्या है, विचार मीन्स वो मूर्ति पूजक बन गया था। So there was no question of to fulfill the covenant. So वहाँ हम इस प्रश्न को नहीं देख सकते कि जो वाचा दी गई थी वो पूरी हो। And also we can clearly see that the Ishmael was not a good news, but Isaac was the good news. और इस बात को भी हम यहाँ देखते हैं स्पष्ट रूप से कि जो इस्माइल था वो शुभ संदेश नहीं था, लेकिन इसहाक था जो शुभ संदेश था परमेश्वर की। Quran also said and the good news that it will be good news, and the Bible also is speaking about the good news and taking the name of Isaac. हाँ, कुरान भी ये शुभ संदेश के बारे में बताता है और बाइबल भी बताता है, लेकिन बाइबल ये जो शुभ संदेश है वो इसहाक के बारे में बताती है। So what we have understand now, तो अब हम यहाँ क्या समझते हैं, the sacrifice is not Ishmael but Isaac. जो कुर्बानी दी गई थी वो इस्माइल की नहीं लेकिन इसहाक की थी। So our Muslim brothers and scholars they may understand because it is very clear. जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं और जो मुस्लिम हाफिज और मौलाना है वो इस बात को स्पष्ट रूप से समझे। If you have any doubt, of course, our Christian mission organization, those who are reaching to the Muslims, यदि they आपके need पास also to understand this. कोई भी संदेह है, दुविधा है, जो खास तौर से और हमारे जो मसीह लोग जो मुसलमानों के बीच में शुभ संदेश सुनाते हैं और उन तक पहुंचते हैं, Please contact us. तो आप हमसे संपर्क कीजिए। We will clear the doubt. हम आपकी जो शंका है वो दूर करेंगे। This program, this mission is for this one. ये जो कार्यक्रम है और ये जो संस्था है वो इसी काम के लिए And है। in the beginning, I said that this is not debate, but this is the kinds of dialogues. शुरुआत में हमने आपको बताया कि ये जो है वाद विवाद नहीं है, ये तो सिर्फ आपस में बातचीत है To make a clear our faith. ताकि हम अपने विश्वास को स्पष्ट करें। We don't want to hurt any faith. हम किसी के विश्वास को, ईमान को दुख पहुंचाना नहीं So चाहते। let us go see further. आइए हम आगे In देखें। addition to this, और उसके और अतिरिक्त में we read a summary of the Abraham and Isaac, which follows the Quran passage and dealing with the sacrifice. तो उसके बाद हम क्या है उस और आगे अब्राहम और उसके पुत्र के जो सारांश है वो कुरान के इस अनुच्छेद में और पढ़ते हैं उसके बलिदान के विषय में भी।
the first things we have seen that very clear Bible mention about the details, the name of the mother and the name of the sons, but in the Quran we don't find such kinds of accountability. सो हम स्पष्ट रूप से साफ तौर से बाइबल में हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसकी माँ और उसके बेटे के विषय में, लेकिन कुरान में नहीं बताया गया। But here we can see that how the additional summary we can see about Abraham and Isaac in this Quranic passage, Quranic ayat. कुरान की जो आयत है अनुच्छेद है उसमें अब्राहम और उसके बेटे के विषय में हम जो सारांश के रूप में पढ़ते हैं। The Surah Safat. सो सूरह Safat सफात में 37, उसका 37वां बाब 109 and 113. और 103 से 109 The peace and the solution on Abraham. जो अब्राहम के क्या है सेल्यूटमिस अब्राहम को शांति और सलाम पहुंचे। Yeah, peace and salutations to the Abraham. यस Yeah, and thus indeed do we reward those who do right. और जो लोग धार्मिक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके लिए जो क्या है सही बदला देते हैं। For he was one of the our believing servant. क्योंकि वह हमारे जो विश्वासी सेवक लोग हैं उनमें से एक है। And we gave him the good news of Isaac. और उसको हम इसहाक के विषय में शुभ संदेश देते हैं। A prophet, one of the righteous. जो नबी और एक धार्मिक व्यक्ति है। And we blessed him Isaac. और हम उसको और इसहाक को आशीष देते हैं। We can see very clear here. सो हम स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते We are हैं। going to bind here. हम यहाँ अंत करेंगे। We will just request you to subscribe and share and like on bell. हम आपसे विनती करते हैं आप इस जो कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें और जो बेल है वो बजाएं। So you can get our programs on time. सो आप हमारे कार्यक्रम समय में प्राप्त करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us have prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Father, thank you परमेश्वर पिता धन्यवाद for this program. इस कार्यक्रम के लिए। Bless. आशीष दीजिए। That Ishmael is not sacrificed, but Isaac is the sacrifice. हम देखते हैं कि इस्माइल का बलिदान नहीं किया गया लेकिन इसहाक का बलिदान किया गया। Ishmael is not good news, but Isaac is the good news according to the references from the Quran and the Bible. कुरान और बाइबल के जो संदर्भ से जो हमने आयतें देखी उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो इस्माइल है वो शुभ संदेश नहीं है, Bless the program. लेकिन इसहाक है। Bless the program. कार्यक्रम को आशीषित करें And bless the people, those who watch this और program. जो लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं सुनते हैं उनको आशीष दीजिए। We thank the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। Prepared on time. Prepared on time to reach you. हम सही समय में आपके पास पहुंच सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।